अस्सलाम वालेकुम बख्तू भाई, सेब किस तरह दे रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। आओ उम्रो आओ। वैसे तो 1 दिनार का 1 सेब है, लेकिन तुम 1 दिनार के 2 सेब ले जाओ। क्यों बख्तू भाई, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? खैर तो है। उम्रो, तुमसे मुनाफा कैसा कमाना, तुम तो अपने दोस्त हो। उम्रो, तुम खरीदारी बाद में करना, पहले बादशाह तलहा को मिल लो। उन्होंने तुम्हें महल में याद किया है, बहुत गुस्से में है वो। अल्लाह तुम्हारी खैर ही करे। अच्छा, तो फिर तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो बख्तू भाई, पहले बादशाह सलामत की बात सुनाऊं, फिर आके सेब भी खा ही लूंगा। अस्सलामु अलैकुम बादशाह हजूर। वालेकुम सलाम। आओ उम्रो आओ, खैर तो है? आज आने में बहुत देर कर दी। देर से आने के लिए माजरत हुआ हूँ। खैर छोड़ो, मैंने आज तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए याद किया है। देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। उमरो उमरो, शुक्र है तुम आ गए। ओ बादशाह अदनान, आप? आज तो बहुत इज्जत की बात है हमारे लिए कि आप हमारे मुल्क में तशरीफ लेकर आए। उमरो, मैं बहुत परेशान हूँ। बेशक अल्लाह ही वाहिद सहारा है, और वही मेरे दिल में बार बार तुम्हारा ख्याल लेकर आ रहा है कि तुम ही मुझे इस मुसीबत से निकालने का वसीला बन सकते हो। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, पर कौन सी मुसीबत? उमरो, बादशाह अदनान के अकलौते बेटे को आग बगोला जिन उठा कर ले गया है और इनकी अहलिया का सर तन से जुदा कर दिया है। ओ, मगर वो क्यों? उस कम ज़र्ब से आपकी क्या दुश्मनी बादशाह हजूर? उमरो, बात कुछ यूं है। शहजादे को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर अकेला ही शिकार पर निकल जाता था। उस दिन भी वो अकेला ही शिकार पर गया था कि लगता है आज किस्मत में कोई शिकार नहीं, खाली हाथ महल को वापस जाना होगा। चलो कुछ देर ताज़ा दम होके वापस चलते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। शेरू, तुम भी कुछ खा पी लो। ओह वाह, कितना खूबसूरत हिरन है। मैंने आज तक इतना सेहतमंद हिरन नहीं देखा। इसको तो मैं जिंदा पकड़ के महल में लेके जाऊंगा। ये महल के बाग में घूमता फिरता बहुत अच्छा लगेगा। ओह शेरू, ये क्या किया तुमने? मैंने उसे जिंदा पकड़ना है। कितना प्यारा हिरन है। इसे तो मैं बाबा हजूर को तोहफे में दूंगा।
اوہ تو بہت تیز ہے، بہت تھکا دیا ہے تو نے مجھے، اب مجھے غصہ آ گیا ہے، لگتا ہے تو زندہ محل میں جانا نہیں چاہتا، تیرے گوشت کی دعوت ہی ہوگی محل میں۔ بہت غصہ دلا دیا ہے تو نے مجھے۔ اب تو تیار ہو جا مرنے کے لیے، یہ لے۔ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہرن کدھر غائب ہو گیا؟ السلام علیکم ابا حضور۔ آ گیا میرا برخوردار، کیا بات ہے، بہت چپ چپ لگ رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ شکار سب صحیح رہا؟ آج کوئی شکار ہاتھ نہیں لگا، خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے اکثر ایسا، جب قسمت میں نہ ہو تو شکار نہیں ملتا، اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، دل کو مضبوط کرو۔ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، مجھے آج تم ٹھیک نہیں لگ رہے، ضرور کوئی بات ہوئی ہے جو تم ہم سے چھپا رہے ہو۔ دیکھو پریشانی بتانے سے کم ہوتی ہے، اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ تیرے اس بیٹے نے میرے بے گناہ بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے، اب بتا شہزادے کو سزا تو دے گا یا میں اسے خود سزا دوں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے تمہارے بیٹے کو کب قتل کیا ہے؟ اس خوبصورت ہرن کو بھول گیا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ میرا ہی بیٹا تھا، کیوں ہلاک کر دیا اس کو تو نے؟ بادشاہ یا تو اس کا سر اتار کر میرے حوالے کر دے، ورنہ میں خود اسے سزا دوں گا، اور ایسی سزا کہ زمین و آسمان بھی کانپ جائیں گے۔ بادشاہ عثمان، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، لگتا ہے مجھے خود ہی تیرے شہزادے کو سزا دینی ہوگی۔ چھوڑو مجھے، میں بے گناہ ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، چھوڑ دو مجھے، ابا حضور مجھے بچائیں، مجھے بچائیں ابا حضور۔ ہائے میرا بیٹا، وہ جن اسے سزا دینے کے لیے اٹھا لے گیا ہے، کچھ کرو بادشاہ، کچھ کرو، ورنہ میں تو اس کی جدائی میں مر جاؤں گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کے ٹکڑے کو لے گیا وہ۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ملکہ عالیہ کو کب اور کیسے قتل کیا؟ عمرو، ہم دونوں بیٹے کی جدائی میں بہت اداس تھے، میں اپنے شہزادے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، جب میں ناکام اپنے محل میں واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ ملکہ عالیہ کا صرف دھر محل کے باغ میں موجود ہے، لیکن سر نہیں۔ یہ اس آگ بھگولے جن کی سازش لگتی ہے، جس کی بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ بادشاہ سلامت، آپ کے دکھ درد کا اندازہ ہے مجھے، میں اس آگ بگولا جن کو جہنم رسید کر کر ہی چین سے بیٹھوں گا اب۔ عمرو، مجھے بس اپنا شہزادہ واپس چاہیے، زندہ سلامت،
अगर तुम मुझे मेरे तख्त का वारिस ला के दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उमरो, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, वो तुम्हारी इस नेक काम में मदद करेगा और कामयाबी की सूरत में मेरी तरफ से एक बेशकीमती इनाम तुम्हारा मुंतजर होगा। लेकिन नाकामी की सूरत में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जो हुक्म बादशाह हुजूर, अब मुझे आप इजाजत दें। जाओ उमरो, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। शहजादे, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने उसे जान के कत्ल नहीं किया। तूने जान के किया है या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तेरे तीर से वो हलाक हुआ है, और अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू रोज तड़पेगा। मैं तुझे इस महल के बाग में ही रखूंगा, जहां तू रोज अपने माँ बाप को तड़पता देख देख के रोएगा और अपने महल में बादशाह के खिलाफ होने वाली साजिशें देखेगा, पर कुछ कर नहीं सकेगा। ये ले, मैं तुझे इस दरख्त में छुपा रहा हूँ, जिसके साए में तेरी माँ रोज आके आराम करती है। अब तू रोज मरेगा, अपनी माँ को तेरी याद में तड़पता देखते हुए। खुदा का वास्ता है, यूं मत करो, रहम करो। आग भगोला जिन, रहम करो। ये ले। सुनहरी तख्ती, सुनहरी तख्ती, जंबील से बाहर आओ और मुझे बताओ, ये आग भगोला जिन कौन है और इसका पता क्या है? उमरो, आग भगोला जिन कैला कबीले का सरदार है और उसके पास आग की बहुत ज़्यादा ताकतें हैं। तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा। लेकिन उमरो, एक बात है। आग भगोला जिन, कहाँ हो? देखो, तुम्हारी जान लेने कौन आया है। मुझे पता है तुम यहीं मौजूद हो। हिम्मत है तो सामने आओ। लो जी, आ ही गए। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं लगती जो यहाँ चले आए हो? तुम आखिर हो कौन? मैंने बताया तो है कि मैं तुम्हारा कातिल हूँ, जो अभी तुम्हें कत्ल करेगा। हा 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 हा, अपना साइज देखो, सिंगल पसली इंसान, तुम और मुझे कत्ल करने आए हो? तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा नाज है। चलो अभी बताता हूँ तुम्हें। ये लो। ओह, तुम तो सिर्फ साइज में ही बड़े निकले, तुम तो बहुत नाजुक हो। आज मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि उम्रो, क्या वक्त आ गया कि अब तू इन जैसे जिनों का मुकाबला करेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, बहुत खूब। चलो, कुछ तो मजा आएगा। ओह, तुम तो वाकई बहुत तेज हो। मैंने तुम्हें कमजोर समझ के गलती की। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा सवाल है। तुम्हारी जान एक शर्त पर बख्श सकता हूँ।
अगर तुम सल्तनते डिंगा के बादशाह अदनान के बेटे को मेरे हवाले कर दो। ओह, तो तुम्हें बादशाह अदनान ने भेजा है। अब समझ आई। लो, मार दो मुझे, क्योंकि मैंने उसके बेटे को मार डाला है। झूठ मत बोलो। मेरे मोक्कल मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उनके मुताबिक वो अभी जिंदा हैं। बताते हो कि तुम्हारा सर कलम करूं। क्या तुम्हें पता है उसके शहजादे ने मेरे बेटे का कत्ल किया था? तो तुम्हारे बेटे को किसने कहा था कि इंसानों की दुनिया में आके सैर करे? और तुमने भी तो मलका आलिया को कत्ल कर दिया है ना? लेकिन मैं अपने बेटे के कातिल को कैसे छोड़ दूं? तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि शहजादा कहाँ है। देखो, मुझे तुम्हारे बेटे की मौत का दुख है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी मौत का दुख होगा। क्यों अपने बाकी बीवी बच्चों पर जुल्म कर रहे हो? उनका ख्याल करो और मुझे शहजादे का पता बता दो। तुम उनको कुछ नहीं कहोगे। उनका इस सब में कोई कसूर नहीं। लगता है मुझे मजबूरन तुम्हारा गला काटना ही पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे बाकी बीवी बच्चों के साथ भी यही कुछ करना होगा मुझे। तुम उनको कुछ नहीं कहोगे। उनका इस सब में कोई कसूर नहीं। एक शर्त पर मैं उनकी जान बख्श सकता हूँ, अगर तुम मुझे शहजादे का पता बता दो। अच्छा, बताता हूँ। मैंने शहजादे को महल के बाग में बरगद के दरख्त में कैद कर दिया था। वाह, तुम तो बहुत चालाक हो। ऐसी दर्दनाक सजा दी तुमने शहजादे को। लो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने शहजादे को तो रिहा कर दिया है। मौत तो तुझे आनी ही है। मलका आलिया की जान इतनी सस्ती नहीं कि तुझे यूं छोड़ दूं। मैंने मलका को नहीं कत्ल किया। झूठ मत बोलो। मेरी बात का यकीन करो, मैंने मलका को कत्ल नहीं किया। मेरी मलका से कोई दुश्मनी नहीं। मैं क्यों उसे कत्ल करूंगा? बेटे को दरख्त में कैद करके उसके सामने ही उसकी माँ का कत्ल कर दिया, और कहते हो मुझे छोड़ दो। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ शहजादे को कैद किया। आग बगोला, मेरा नाम उमरो अयार है। मुझे बेवकूफ ना बनाओ। मैंने अगर कत्ल करना होता तो उस वक्त शहजादे को कत्ल कर सकता था, लेकिन मैं जिनों के जिस कबीले से हूँ वो इंसानों को कत्ल नहीं कर सकते। तभी शहजादे को दरख्त में कैद कर दिया। बात तो तुमने सही की है। लेकिन उमरो, एक बात है। आग बगोला जिन के कबीले वालों को इंसानों को मारने की इजाज़त नहीं। मलका आलिया को उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके पीछे कोई और है। तुम्हारे कबीले के जिनों को इंसानों को कत्ल करने की इजाजत नहीं, तो फिर मलका आलिया को किसने कत्ल किया? मुझे नहीं इल्म कि ये किसका काम है। शायद महल में कोई दुश्मन हो जिसने मौके का फायदा उठा के मलका को कत्ल कर दिया। एक मिनट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये आग बगोला जिन सच बोल रहा है? मलका आलिया को किसने कत्ल किया होगा? क्या मैं मलका आलिया के कातिल तक पहुंच पाऊंगा? ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड देखें। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। चलें, आगे क्या हुआ अगली किस्त में देखते हैं।